लास्ट सेशन में हमने इन्फेंट केयर के बारे में बात की थी। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। So growth is increase in the size of body and development is increase in skills and function. This is how these two are different. What growth is the physical increase in the size of the body, and development means something entirely different, which is increase in skills and functions. So they are considered together as the child grows and develops as a whole. With the passage of time, with increasing age, a child grows as well as develops. So these two are considered together. Growth monitoring is a process through which growth and development of a child is monitored. So we will see how a child grows and develops as it grows older, and how this growth is measured or monitored. So what are the determinants of growth and development? What are different factors that influence the growth and development of a child? What are the factors that have an effect on growth and development of a child? These are genetic inheritance. You will see growth patterns in a child which are inherited from his or her parents. So taller parents have taller children. That is genetic inheritance in a nutshell. And similarly, development is also influenced by genetic inheritance. Then nutrition of a child, of course, if the nutrition is not proper, if the child is malnourished, it will affect his or her growth as well as development. Age, younger children have grown less. As they grow older, they grow more and they develop more. There are certain skills and functions which are required only with advancing age. So age is another factor or another determinant of growth and development. Then sex, certain physical characteristics of body, for example, the size, the height of boys is usually more than the girls. So sex is a determinant of growth. Similarly, some developmental skills are determined by the sex of the child. For example, multitasking is a function or a skill which is found more in girls than boys. Physical surroundings influence the growth and development. The kind of environment you live in, that certainly influences the growth and development of a child. Psychological factors, so child abuse, we know can affect growth and development of the child. Infections and parasitosis can adversely affect the growth and development of a child. There are economic factors. If there is not economic uh, what should we call it, there are not proper economic aids available to the parents, then the child is likely to grow less and develop less than some of the other children. There are other factors, for example, birth order of the child, birth spacing, birth weight. These factors influence the growth and development. Then twins, education of parents, and are some of the other determinants of growth and development. Growth, as we have said earlier, refers to increase in the physical size of the body. So since it is physical, it can be measured in terms of weight, in terms of height, or length. When the child is still an infant and it hasn't started an erect posture, the length will be measured instead of height. Then head and chest circumference are another two measurements that can be used to measure growth in a child. And after measuring these things, you can compare these to reference standards to see if the child is growing properly or normally or not. Then development, as we said earlier, refers to increase in skills and functions. It is a little bit more difficult to measure since skills and functions are not always measurable things. But based on observations,
in the fields of motor and personal development and adaptive and language development, you can come up with some milestones of development in the fields. So we have said earlier that you can measure growth in terms of height and weight and length in case of infants, as well as chest and head circumference. Now, after measuring these things, you can compare it to reference your standard values uh, to see whether these values correspond to the normal growth pattern of a child of that age or otherwise. तो व्हाट आर दीज रेफरेंस एंड स्टैंडर्ड वैल्यूज? तो आप ये जानिए कि एक पॉपुलेशन में जितने भी बच्चे हैं उन सारों की हर एज के बच्चे की अगर आप हाइट मेजर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ऑन एवरेज क्या है उनकी हाइट, और फिर आप एक बच्चे की हाइट मेजर करते हैं और कंपेयर करते हैं उसको उन सारे बाकी बच्चों की हाइट, एवरेज हाइट से, और देखते हैं कि ये उनसे कम है, उनसे ज़्यादा है या उनके जैसी है, तो वो सारे बच्चों की हाइट इस सूरत में एक रेफरेंस या स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि जो बच्चा जिसको आप देख रहे हैं उस वक्त उसकी हाइट जो है वो बाकी रेफरेंस और स्टैंडर्ड वैल्यू के मुताबिक है या नहीं है, उनसे कम है। तो आमतौर पर जो स्टैंडर्ड और रेफरेंस वैल्यूज यूज होती हैं उनमें WHO की रेफरेंस वैल्यूज हैं, फिर एक हार्वर्ड और हार्वर्ड स्टैंडर्ड्स उनको बोलते हैं या बॉस्टन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, वो वाली के रेफरेंस वैल्यू उनसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये हार्वर्ड और बॉस्टन स्टैंडर्ड्स जो हैं ये हमारे यहाँ इतने रेलेवेंट नहीं हैं, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चों की हाइट और वेट जो है वो फ़र्क है वहाँ के कॉकेशियन बच्चों और अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों से जो उन्होंने मेजर किए थे, जो रेफरेंस उन्होंने बनाया है। तो WHO की रेफरेंस वैल्यूज इस हवाले से ज़्यादा रेलेवेंट हैं और उससे भी ज़्यादा रेलेवेंट होंगी अगर आप अपने ही इलाके के तमाम बच्चों को या बहुत सारे बच्चों को की हाइट या वेट मेजर करके उनकी रेफरेंस वैल्यूज बना लें, तो उनको लोकल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के भी कुछ लोकल स्टैंडर्ड्स हैं, अवेलेबल हैं। तो आप जब भी किसी बच्चे की हाइट या वेट या चेस्ट सर्कमफ्रेंस या मेजर करते हैं तो आप उनको फिर लोकल स्टैंडर्ड्स या लोकल रेफरेंस वैल्यूज के साथ कंपेयर करते हैं कि ये नॉर्मल है या उससे हटके है। फिर एक चीज होती है सर्वेलेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर किया जाता है। ये एक MCH का एक अहम पार्ट है और इसका मेन जो पर्पस है, जो मकसद है, इज टू आइडेंटिफाई वो वाले बच्चे जो नॉर्मली ग्रो ना कर रहे हों। और ये फिजिकल ग्रोथ और बिहेवियरल डेवलपमेंट दोनों की सर्वेलेंस है। आप करते क्या है कि आप मुख्तलिफ मौके पे, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, बच्चे की एज के दौरान मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आप उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के जो माइलस्टोन्स हैं उनको मेजर करते हैं और उनको कंपेयर करते हैं रेफरेंस वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ, और देखते हैं कि बच्चे की जो एक पॉइंट से अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो वो विद इन नॉर्मल रेंज रह रहा है या उससे कम हो रहा है, किस डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जा रही है। तो ये उसकी सर्वेलेंस होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो इस सर्वेलेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो मॉनिटरिंग है, इसमें आप क्या देखते हैं? आप फिजिकल ग्रोथ जब देखते हैं तो उसमें आप उसका वेट देखते हैं, एज के हवाले से कितना है। अगर 4 साल का बच्चा है तो उसका कितना वजन है, और उसको कंपेयर करते हैं रेफरेंस वैल्यू जो 4 साल के बच्चों की बाकियों का वेट है उस कम्युनिटी में, उसके साथ हाइट देखते हैं, हाइट फॉर एज उसको बोलते हैं, उस एज के लिए उसकी हाइट कितनी है और बाकियों के साथ जब कंपेयर करेंगे रेफरेंस वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ तो वो कैसी है। फिर वेट फॉर हाइट देखते हैं कि उसकी हाइट के हवाले से उसका वेट कितना है और उसकी हाइट के दूसरे बच्चों के वेट के साथ कैसे कंपेयर करता है। फिर हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस देखते हैं। तो ये फिजिकल ग्रोथ देखने के उसकी सर्वेलेंस के चंद मेयार या चंद तरीकाकार हैं। बिहेवियरल डेवलपमेंट में आप उसके माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। माइलस्टोन्स क्या होते हैं अभी हम देखेंगे बाद में। पहले वेट फॉर एज है, आप वेट और रेट ऑफ गेन ऑफ वेट जो है उसको असेस करते हैं फिजिकल ग्रोथ की मॉनिटरिंग में या सर्वेलेंस में।
आप क्या करते हैं, आप रिपीटेड मेजरमेंट्स लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 1 साल, हर 2 महीने के बाद ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, और हर 3 महीने के बाद अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज, और उनको कंपेयर करते हैं ग्रोथ चार्ट्स के साथ या रेफरेंस स्टैंडर्ड्स के साथ। क्या करते हैं जी, आप बर्थ से लेकर पहले साल तक हर महीने उसका वेट लेते हैं, फिर हर 2 महीने के बाद दूसरे साल के दौरान, उसकी एज के दूसरे साल के दौरान, फिर हर 3 महीने के बाद जो है 2 से 5 साल तक की उम्र के बीच में उसका वजन जो है वो उसको मेजर करते हैं। और जब उस हर पॉइंट पे जब आप मेजर करते जाते हैं उसकी एज में, उसको आप कंपेयर करते जाते हैं जो रेफरेंस वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड्स के साथ, और कंपेयर करने से आपको पता चलता है कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन नॉर्मल रेंज में रह रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है इसकी ग्रोथ भी नॉर्मल रेंज में हो रही है, या कम होती जा रही है, या पहले कम थी अब बेहतर हो गई है, वगैरह वगैरह। आप चार्ट्स के ऊपर उसको प्लॉट करके उसकी डायरेक्शन जो है, उसका ग्राफ जो किस तरफ जा रहा है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, आइडियली जो बेबी है इट शुड गेन एटलीस्ट 500 ग्राम वेट पर मंथ इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लाइफ, और अगर इससे कम हो रहा है तो आप कहेंगे कि जो बेबी है मेल नोरिश्ड है। और हेल्दी बेबीज शुड डबल देयर वेट बाय 5 मंथ्स, और ट्रिपल इट बाय फर्स्ट ईयर एंड क्वाड्रुपल इट बाय एज ऑफ 2। 2 साल तक की उम्र तक बच्चों को अपना वजन जो है वो 4 गुना कर लेना चाहिए बेबीज को। ऐसे ही जैसे आपने वेट की बात की है कि ग्रोथ की मॉनिटरिंग या सर्विलेंस में आप वेट मुख्तलिफ मौके पे उसकी एज के दौरान, उसके बड़े होने के दौरान मेजर करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं विद द रेफरेंस वैल्यूज। ऐसे ही आप उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं उसकी एज के लिए, और उसको कंपेयर कर सकते हैं विद द रेफरेंस वैल्यूज। तो ये जो है ये एक ज़्यादा स्टेबल मेजरमेंट है कंपेयर टू वेट, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस जो है, जो वेट होता है वो प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस के बारे में ही बताता है। जो हाइट होती है ये पुराना भी बता देती है। अगर एक बच्चे की हाइट कम है फॉर हिज एज या हर एज, तो इसका मतलब है कि उसके पहले मसाइल चलते रहे हैं, मेल नूरिशमेंट रही है, कुछ और रहा है जिसकी वजह से उसकी हाइट उसकी एज के हवाले से कम है। कैसे पता चलता है कि उसकी एज के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए? वो रेफरेंस वैल्यूज से, स्टैंडर्ड वैल्यूज से। तो ये उससे बेहतर है वेट से, क्योंकि वेट तो पिछले चंद दिनों में कम हो सकता है, डायरिया हुआ या कुछ और मसला हुआ तो पिछले चंद दिनों में उसका वेट कम हो गया होगा, पहले ठीक चलता आ रहा था। तो लेकिन हाइट जो है ये पुराना बताती है, ज़्यादा लंबा बताती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल मेजरमेंट है। अच्छा जी, हाइट कैसे मेजर की जाती है? स्टैंडिंग पोजीशन में 2 साल से बड़े बच्चों के लिए कोई जूता ना पहना हो और 0.1 सेंटीमीटर तक की इसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। और जो इंडियन एथनिसिटी जिनमें हम भी शामिल हैं, पाकिस्तानी भी उसी में आते हैं, तो वो जो अपनी फाइनल हाइट्स हैं वो गर्ल्स जो हैं 16.5 साल की उम्र तक, और बॉयज़ जो हैं वो 18 साल तक की उम्र तक अचीव कर लेते हैं। तो ये एक टेबल है जो आपको बता रहा है जी इंक्रीज इन वेट विद एडवांसिंग एज, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरह से बढ़। फिर वेट फॉर एज या हाइट फॉर एज से हट के आप वेट फॉर हाइट भी एक पैमाना बना सकते हैं किसी की ग्रोथ की मॉनिटरिंग का। अच्छा जी, इसमें हाइट के हवाले से उसका वजन देखा जाता है। तो इसमें आप इससे फ़ायदा ये होता है कि आप दोनों पैरामीटर्स शामिल कर लेते हैं एक ही मेजरमेंट में। आप देखते हैं कि अगर बच्चे का 2 साल का बच्चा है और उसकी हाइट इतनी है और उसका वज़न इतना है, तो आप ये देख लेते हैं कि इस हाइट के बाकी बच्चों के वज़न कितना है, तो इसका कितना है, और कंपेयर कर लेते हैं उनको, क्या उनके साथ है, उनसे कम है, या उनसे बेहतर है, जो भी है। तो ये बेहतर पैमाना है क्योंकि इसमें वेट और हाइट दोनों शामिल हो जाते हैं। अच्छा, ये भी एक मेजर है ग्रोथ की मॉनिटरिंग का। अब एक चीज होती है वेस्टिंग और एक होती है स्टंटिंग। वेस्टिंग होती है अगर लो वेट फॉर हाइट हो, अगर किसी बच्चे का वजन जो है उसकी हाइट के हवाले से कम हो। कैसे पता चलेगा कि उसका वजन जो है उसकी हाइट से हवाले से, उसकी हाइट के मेयार से कम है? वो क्या आप कंपेयर कर लेते हैं उसी की हाइट के, अगर उसकी हाइट फर्ज किया
x सेंटीमीटर्स है, तो बाकी जितने बच्चे जिनकी हाइट जो है x सेंटीमीटर्स है, उनका वजन क्या है और इसका वजन क्या है। अगर इसका वजन कम है इसकी अपनी हाइट के दूसरे बच्चों से, तो आप कहेंगे कि ये वेस्टेड है, तो इसको हम वेस्टिंग कहते हैं। इफ द वेट फॉर हाइट इज लो देन इट इज कॉल्ड वेस्टिंग। अच्छा, ये शो करता है कि मेल न्यूट्रिशन है, और ये मेल न्यूट्रिशन जो है आप जानते हैं कि वो एसोसिएटेड है विद इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। फिर दूसरी चीज होती है स्टंटिंग। स्टंटिंग होती है अगर लो हाइट फॉर एज हो, अगर बच्चे की हाइट उसकी एज के मुताबिक से कम हो तो उसको स्टंटिंग बोलते हैं। कैसे पता चलेगा कि उसकी हाइट जो है उसकी एज के हवाले से कम है? आप देख लेते हैं कि बाकी उस एज के जो बच्चे हैं उनकी हाइट क्या है, वो रेफरेंस वैल्यू होती है आपकी या स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उससे कंपेयर कर लेते हैं। अगर उसकी कम आ रही है तो आप बोलते हैं स्टंटेड है। तो ये भी क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन को शो करती है। फिर हेड एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस, दो और मेजर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं ग्रोथ की मॉनिटरिंग के लिए। हेड सरकमफ्रेंस बर्थ के वक्त 34 सेंटीमीटर तक होता है, और ये चेस्ट सरकमफ्रेंस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा होता है। 6 से 9 मंथ्स की एज तक दोनों मेजरमेंट्स एक जैसी हो जाती हैं, 2 सेंटीमीटर का फर्क खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर चेस्ट सरकमफ्रेंस ज्यादा होना शुरू हो जाता है और हेड सरकमफ्रेंस से ये जो ओवरटेकिंग है चेस्ट सरकमफ्रेंस की फ्रॉम द हेड सरकमफ्रेंस, ये डिले भी हो सकती है 3 से 4 साल तक। किन में? जो सीवियरली मेल नूरिश्ड होते हैं उनमें चेस्ट सरकमफ्रेंस जो है वो बढ़ता नहीं है हेड सरकमफ्रेंस से। फिर दूसरी चीज ग्रोथ के बाद थी डेवलपमेंट, जिसमें आप स्किल्स एंड फंक्शंस को देखते हैं। हमने पहले बात की थी कि इनको मेजर करना आसान नहीं है। आप फिजिकल ग्रोथ को तो मेजर कर लेते हैं वजन से और हाइट से और सरकमफ्रेंसेस से, लेकिन जो माइलस्टोन जो सॉरी डेवलपमेंट है, जो स्किल्स और फंक्शंस की डेवलपमेंट है उसको मेजर करना मुश्किल चीज़ है, ये मेजरेबल चीज़ नहीं है। लेकिन आमतौर पर इसके लिए जो पैमाना इस्तेमाल किया जाता है उसको माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। ये माइलस्टोन्स इधर आपके सामने चार्ट पे दिए गए हैं, जिनके मुताबिक फॉर एग्जांपल आप देखें कि 3 मंथ पे वो कह रहा है कि जो मोटर डेवलपमेंट के हवाले से बच्चे को अपना हेड जो है वो इरेक्ट रखना चाहिए, बच्चे को अपना सर संभालना चाहिए, उसको कहते हैं आमतौर पर हमारे यहाँ। तो इट मस्ट बी द बेबी मस्ट बी एबल टू होल्ड हर और हिज हेड इरेक्ट, और ये उसकी मोटर डेवलपमेंट का माइलस्टोन है जो 3 मंथ्स तक आ जाना चाहिए। अगर वो 3 मंथ्स तक नहीं आया है तो हम कहते हैं जी डिलेड है माइलस्टोन। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं 9 to 10 मंथ्स में मोटर डेवलपमेंट में आप उसको क्रॉल करना शुरू कर देना चाहिए या क्रॉल करना चाहिए। उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट में साउंड्स जो है इंक्रीजिंग रेंज ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। अडेप्टिव डेवलपमेंट में उसको क्या नाम है, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के उनको छोड़ना आना चाहिए, रिलीज ऑब्जेक्ट करना आना चाहिए। अच्छा जी, सोशो पर्सनल डेवलपमेंट में उसको सस्पिशियस ऑफ स्ट्रेंजर्स होना चाहिए। जो बच्चे स्ट्रेंजर को देख के घबरा जाते हैं या रोना शुरू कर देते हैं या उनके पास जाने से इनकार कर देते हैं, दैट शुड बी देयर बाय द एज ऑफ 9 to 10 मंथ्स। तो ये एक डेवलपमेंट का माइलस्टोन है। अगर इन चीज़ों में से कोई चीज़ 9 से 10 मंथ तक की एज के दौरान के तक पहुंचने तक भी नहीं आई है तो हम कहेंगे कि जी माइलस्टोन जो है वो डिलेड है। तो डिलेड माइलस्टोन है, वो मोटर हवाले से है या डेवलपमेंट लैंग्वेज की डेवलपमेंट के हवाले से है या कोई और है। तो ये बिहेवियरल डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट है। अच्छा, ये कोई बहुत अच्छा मेजर नहीं है। आमतौर पर डिले होने का, माइलस्टोन डिले होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि बच्चे की डेवलपमेंट में कोई मसला है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, फॉर एग्जांपल 9 to 10 मंथ्स में अगर बच्चे ने सस्पिशियस ऑफ स्ट्रेंजर्स नहीं है तो हम ये कहते हैं जी सोशल पर्सनल माइलस्टोन उसका डिलेड है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि उसकी डेवलपमेंट जो है वो ठीक नहीं है। हो सकता है वो 10 से 11 मंथ में ये शुरू कर दे, 12 से 14 मंथ में शुरू कर दे, ये नॉर्मल है, इतनी वेरिएशन नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिलेड हो फिर हमें वरी करने की ज़रूरत होती है। अगर वो 24 महीने का हो गया है और वो क्रॉल नहीं कर पाया या इरेक्ट पोस्चर नहीं है अभी तक उसका, तो देन वी हैव टू वरी कि अब उसके जो माइलस्टोन है वो इतना डिलेड है कि उसकी डेवलपमेंट जो है वो प्रॉब्ली ठीक नहीं हो रही है।
हमने रेफरेंस और स्टैंडर्ड वैल्यूज की बात की थी और ग्रोथ चार्ट्स का भी जिक्र आया था, तो हम देखते हैं ग्रोथ चार्ट्स क्या होते हैं। तो simply put, growth charts are a visible display of a child's physical growth and development. Road to health कार्ड भी इनको बोलते हैं। So these are a visible display of child's growth. और ग्रोथ चार्ट्स यूज होते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए, ये एज अ डायग्नोस्टिक टूल भी यूज होते हैं, ये प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं एट अ वाइडर मैक्रो लेवल, एजुकेशनल टूल के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, ये इवेल्युएशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कि अगर आपने कोई इंटरवेंशन की थी तो वो ठीक उसका कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है या कोई नुकसान हुआ है, और ये टीचिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, हर ग्रोथ चार्ट में दो एक्सिस होंगे, एक्स एक्सेस होएगा और वाई एक्सेस होएगा। एक्स एक्सेस पे आप एज लेते हैं, एज जो है एक्स एक्सेस के अलोंग मंथ्स में या ईयर्स में जो है वो बढ़ती जाती है, और वाई एक्सेस के अलोंग या आप वेट ले लेते हैं या फिर आप हाइट ले लेते हैं जो बढ़ता है वर्टिकली टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। अच्छा, स्टैंडर्ड जो ग्रोथ चार्ट्स हैं उसमें 5 परसेंटाइल लाइंस भी होती हैं, जो थर्ड परसेंटाइल, 15th, 50th, 85th और 97th परसेंटाइल्स होते हैं। जो नॉर्मल ग्रोथ होती है वो बिटवीन द थर्ड एंड 97th परसेंटाइल होती है। ये परसेंटाइल क्या होते हैं इसका भी जिक्र करते हैं। अच्छा जी, 50th परसेंटाइल का मतलब है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एक तरफ है और 50% दूसरी तरफ है। मीनिंग के अगर आप कहें कि वजन किसी का 50th परसेंटाइल पे है, तो इसका मतलब है कि उसका वजन से 50% आबादी जो है वो उसके वजन से कम है, 50% जो आबादी है उसके वजन से ज्यादा है, उसका वजन उसके वजन से ज्यादा है। ऐसे ही अगर 85th परसेंटाइल पे है तो इसका मतलब है 85% जो आबादी है उसका वजन या उसकी जो भी मेजरमेंट आप ले रहे हैं वो 85% आबादी की वो उस बंदे से कम है और 15% की उससे ज्यादा है। एंड सिमिलरली 15th परसेंटाइल का मतलब है कि सिर्फ 15% ऑफ आबादी की जो मेजरमेंट आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप वजन ले रहे हैं, किसी बच्चे का वजन आया है जो भी आया है और वो 15th परसेंटाइल पे फॉल, आपने उसके वजन को जब ग्रोथ चार्ट के ऊपर प्लॉट किया एक्स और वाई एक्सेस देख के, ठीक है, और वो 15th परसेंटाइल पे अगर वो फॉल किया तो इसका मतलब है 15% जो पॉपुलेशन है उसका वजन इस बच्चे के वजन से कम है और रेस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन है उसका वजन उसके वजन से ज्यादा है। ये परसेंटाइल्स होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है ग्रोथ चार्ट की जो अभी हमने जिक्र किया है जी। एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है। ये WHO वाला ग्रोथ चार्ट है और ये गर्ल्स के लिए अलग होता है और बॉयज के लिए अलग होता है। अच्छा जी, गर्ल्स के लिए अगर वेट फॉर एज लें ग्रोथ चार्ट, वेट फॉर एज वाला ग्रोथ चार्ट गर्ल्स का आपने लिया है तो आप देखें एक्स एक्सेस पे है उसकी एज जो बर्थ से लेकर 5 साल तक जा रही है और मंथ्स में उसने ली हुई है। हर जो एक छोटा स्क्वायर है वो एक महीने की एज को शो करता है एक्स एक्सेस पे। अब वाई एक्सेस पे उसने उसका वेट लिया हुआ है इन किलोग्राम्स। आप देखें कि हर जो छोटा जो वो है स्क्वायर है वो 2 किलोग्राम्स वेट को इंक्रीज को शो कर रहा है अलोंग दी वाई एक्सेस। अच्छा जी, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं 5 लाइनें लगी हुई हैं। एक थर्ड परसेंटाइल है, फिर 15th परसेंटाइल है, उससे ऊपर 50th परसेंटाइल है ग्रीन वाला, 85th परसेंटाइल है, फिर 97th परसेंटाइल है। अच्छा, अब आप किसी बच्चे का कोई बच्चा आपके पास आता है और उसकी एज है 8 मंथ्स और उसका वेट है 7 किलोग्राम्स। तो आप उसके एज और उसके वेट को इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। आप देखेंगे 8 मंथ्स पे उसका 8 मंथ्स एक्स एक्सिस के अलोंग चले जाएंगे आप आगे और फिर उसका वजन देखेंगे 7 किलोग्राम, उसको प्लॉट करेंगे इस ग्राफ के ऊपर तो आप देखेंगे बिल्कुल जो दूसरे वाली लाइन है, नीचे से दूसरे वाली येलो कलर की लाइन है उसके ऊपर वो आ रहा है जो कि 15th परसेंटाइल की लाइन है। इसका मतलब ये होगा कि उस बच्चे का वजन जो है वो
आबादी के नीचे वाले 15% में आता है। मीनिंग के सिर्फ 15% आबादी जो है, उसकी एज के बच्चों की जो आबादी है, उनका वजन उससे कम है। बाकी 85% जो पॉपुलेशन है उसकी एज के बच्चों की, उनका वेट उससे ज्यादा है। मीनिंग के वो 15th परसेंटाइल पे फॉल कर रहा है। मीनिंग के वो विद इन द नॉर्मल रेंज फॉल कर रहा है, क्योंकि 3rd से 97th के बीच में नॉर्मल है। अब हम देखते हैं नॉर्मल तो है, लेकिन क्या ये हेल्दी भी है या नहीं है। तो आप जो बीच वाले 15th टू 85th परसेंटाइल है ना, जो येलो लाइंस हैं, अगर तो उनके ऊपर आए, उनके बीच में आए, तो आप कहेंगे दिस बच्चा जो है वो रोड टू ऑन रोड टू हेल्थ है। ठीक है। और उसका जब सक्सेसिव उसकी मेजरमेंट्स लेंगे, जब उसकी एज बढ़ती जाएगी 8 माह पे, 10 माह पे, 1 साल पे, 14 मंथ्स पे, और ऐसे ही, और आप उसके प्लॉट करते जाएंगे और एक कर्व उसका अपना बनता जाएगा, तो आप देखते जाएंगे वो कर्व जो है वो पैरेलल है टू द 50th परसेंटाइल या नहीं है। अगर तो पैरेलल टू 50th परसेंटाइल है और फॉल कर रहा है विद इन 15th टू 85th, तो द बच्चा इज ऑन रोड टू हेल्थ, बच्चे का कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 15 से नीचे हो और 85th से ऊपर हो, तो फिर कुछ इश्यूज हैं। और अगर वो 97 से बाहर हो या 3% से नीचे हो, फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मेल न्यूट्रिशन है। सिमिलरली जैसे गर्ल्स के लिए ग्रोथ चार्ट्स होते हैं, ऐसे बॉयज के लिए भी होते हैं, वेट फॉर एज के भी होते हैं, हाइट फॉर एज के भी होते हैं। तो ये भी एक WHO का ग्रोथ चार्ट है, वेट फॉर एज फॉर बॉयज, जो बर्थ से 2 साल तक के बच्चों के लिए है। ऐसे ही 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए एक अलग से चार्ट होता है। ये मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आप प्लॉट करके आप देखते हैं कि वो ये एक्चुअली रेफरेंस वैल्यू है, आपकी स्टैंडर्ड्स हैं, और आप देखते हैं कि वो बच्चा जो है नॉर्मल लिमिट्स के बीच में है या नहीं है। सो रोड टू हेल्थ जो है वो क्या होती है, तो 2 इसमें रेफरेंस कर्व्स या 2 परसेंटाइल जो कर्व्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा परसेंटाइल, 3rd परसेंटाइल और 50th परसेंटाइल। अगर इन दोनों के बीच में हो या 50th से थोड़ा सा ऊपर हो, इन दोनों के बीच में उसकी ग्रोथ चल रही हो, तो हम कहेंगे जो बच्चा इज इन द जोन ऑफ नॉर्मेलिटी फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड ही और शी इज ऑन रोड टू हेल्थ। तो कैसे यूज करते हैं ग्रोथ चार्ट को? आप सबसे पहले उसकी एज को एक्यूरेटली डिटरमिन करते हैं। अगर मंथ्स में है चार्ट के ऊपर, तो मंथ में कितने मंथ्स की उसकी एज है उसको एक्यूरेटली डिटरमिन करते हैं। फिर उसका वेट लेते हैं उस एज के लिए, उसको फिर उसके बाद चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, अप्रोप्रिएट चार्ट को। अगर बॉय है तो बॉयज वाला चार्ट, अगर गर्ल है तो गर्ल्स वाला चार्ट, और फिर उस स्पेसिफिक एज ग्रुप वाला चार्ट। अगर तो 0 से 2 साल तक के लिए है तो वो वाला चार्ट, अगर 2 से 5 साल वाला है तो वो दूसरा चार्ट होएगा उसके लिए। फिर उनको चार्ट के ऊपर प्लॉट करते हैं उसकी मेजरमेंट्स को, परसेंटाइल लाइंस के हवाले से उसको देखते हैं कि उसकी बॉडी ग्रोथ जो है वो हेल्दी एरिया में फॉल कर रही है या नहीं है। और फिर उसका ग्रोथ पैटर्न जो होता है उसके पेरेंट या केयर गिवर के साथ आप डिस्कस करते हैं, और अगर कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत हो तो उसको वो एडवाइस करते हैं। ग्रोथ पैटर्न से मुराद ये है कि अगर आपने मल्टीपल मेजरमेंट्स ली हैं, उसकी 6 माह की एज पे ली थी, फिर 8 माह की एज पे ली, फिर आपने उसकी 9 मंथ्स की एज पे एक और मेजरमेंट ली, फिर आपने 1 साल की उम्र में एक और मेजरमेंट ली, और फिर 14 मंथ्स एज पे इसकी एक और मेजरमेंट ली। उन सारों को प्लॉट करके आपने उनको मिला के, जो भी डॉट्स आपने प्लॉट किए थे ग्राफ पे, उनको मिला के जो आपको लाइन जो बनी उसकी ग्रोथ की, वो अगर नीचे की तरफ जा रही है, 3rd परसेंटाइल की तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन जो है नीचे को है, तो वो ऑन रोड टू हेल्थ नहीं है। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि आपका बच्चा जो है वो उसकी सेहत खराब होती जा रही है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या वो परसेंटाइल जो है 50th से नीचे रह रही है या उसके ऊपर जा रही है 85th से ऊपर जा रही है, तो उसके हर एक हवाले से अलग इंटरप्रिटेशंस होती हैं। उसको इंटरप्रेट करने के बाद आप डिस्कस करते हैं विद द पेरेंट्स या केयर गिवर्स। एक हेल्दी इन्फेंट में नॉर्मल ग्रोथ जो होती है वो टिपिकली फॉलोज द सेम ग्रोथ कर्व या रोड टू हेल्थ जिसको बोलते हैं, उसी को फॉलो करती है। ये 50th परसेंटाइल जो है, जो बीच वाला है, उसके पैरेलल चलेगी उसका जो ग्रोथ पैटर्न होएगा, और इट विल फॉल बिटवीन द 3rd एंड 97th परसेंटाइल। ये नॉर्मल ग्रोथ है ना हेल्दी इन्फेंट।
So this finishes our infant care and growth and development and growth charts. Next session में हम adolescent health के हवाले से बात करेंगे.